first time in the history of our state that we have had such a wonderful initiative, National Mental Health Program, National Health Mission Tripura has organized this valedictory function of state-level capacity building initiative. Miss Maryada Medhi, clinical psychologist, GS Nimhans Mental Health Program. Thank you, madam, for coming now. We have started this program on 29th July. Today is the closing day. A total of 396 community health officers have attended this program. In the first phase, 205 CHOs attended the program, and in the second phase, 191 CHOs have attended this program. We all know that mental health service is a critical component of overall health service, and it is essential that our CHOs are well equipped to address the mental health needs of our community. Because of that, we have conducted this 4-day-long training program to provide our community health officers necessary knowledge and skill so that they can address the mental health issues effectively. I congratulate our community health officers on their active participation and enthusiasm throughout the training program. I hope they will obviously apply what they have learned from here in their service area for providing better services in mental health services. I also convey my sincere thanks to the 9 resource persons who have come over here for imparting training, and I hope the knowledge and skill which they have shared with our CHOs will definitely help them in providing mental health care in our state. I also welcome Mr. Professor Naveen Kumar C. and Professor Purnima Murthy, who are attending with us in this program online. I must convey my sincere thanks to our Secretary Sir for coming over here despite of his busy schedule, and his guidance will definitely help us in improving our mental health care service. I look forward as positive success in the program today. I thank you all, Chief Guest and Inaugurator, our favorite Secretary, Health and Family Welfare, Sri Kiran Kumar Sir, respected Director Health Service, Mr. Sanjeev Devarma, Mr. Varman, HOD, Psychiatric Hospital, MS Dr. Nupur Devarma of Dayas, 9 resource persons from Nimans, Bengaluru, our doctors, community health officers, my colleagues, media friends. कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था, वर्ल्ड वॉर 2 4 साल चला और हिटलर ने ऑलमोस्ट यूरोप पे ऑलमोस्ट कब्जा कर ही लिया था। बहुत ही छोटा सा ओपनिंग था, बहुत ही छोटी सी उम्मीद थी, और वहां से लेकिन विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के तब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको लीड किया और उन्होंने वो वॉर जीता। तो उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था कि ही यूज्ड टू हैव डिप्रेशन इन द मूड। वो गुस्से में कुछ कुछ बोल देते थे। आपने विंस्टन चर्चिल के नाम से एक मूवी है,
आप जरूर देखिए, उसमें वो उनका पूरा दिखाया गया है कि कैसे घर में वो एकदम उनका मूड खराब रहता था, क्या क्या बोलते थे। फिर उनकी वाइफ उनको धीरे धीरे काउंसलिंग करती थी, फिर वो जाके अपना काम पार्लियामेंट में और कैबिनेट मीटिंग में काम करते थे। तो बड़े बड़े लोग भी हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनको भी डिप्रेशन था। अभी कुछ साल पहले जो अभी बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उसने भी एक्सेप्ट किया कि शी हैज आल्सो गॉन थ्रू द मेंटल डिप्रेशन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इतने लीडिंग पर्सनालिटीज भी अगर इस कंडीशन जाते हैं तो हमारे कॉमन पीपल का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो किसी का बच्चा फेल हुआ, किसी को कोई समझो फाइनेंशियल नुकसान हो गया, तो इसके कारण भी आपको डिप्रेशन आ सकता है। बच्चे हैं, अभी इतनी कंपटीशन है, अभी आप देख रहे हैं कि नीट में पास होने के लिए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, कितना मतलब अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई गलत भी तरीका ढूंढ रहे हैं। ये सब 23 लाख लोग नीट की परीक्षा देते हैं, डॉक्टर तो 1 ही लाख बनते हैं एमबीबीएस, फिर बाकी कोर्सेज में जाते हैं, बाकी लोगों का क्या होता होगा, वो भी तो मेंटल डिप्रेशन जाते होंगे। उसमें से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं आगे, लेकिन कुछ लोग तो उसमें उनका नुकसान होता होगा। तो मेरा आपसे CHO जो हमारे हैं, वो मैंने आपको सबको आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से मैंने देखा, मैं उस कमेटी में था जिस कमेटी में आपको कैसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसका सब डिस्कशन हो कर रहे थे हम लोग। तब आपको मेरिट पे लिया गया है, आप वन ऑफ द बेस्ट फील्ड स्टाफ हमारे स्टेट में है। अभी हमारा 2 महीने पहले शिलोंग में मीटिंग हुआ था, तो उसमें भारत सरकार के जो सेक्रेटरी है अपूर्व चंद्रा साहब, उन्होंने बोला था कि त्रिपुरा के CHO बेस्ट है, पूरे कंट्री में बेस्ट है, क्योंकि 6 महीने का कोर्स का ट्रेनिंग आपने किया है। और ऐसे जो अभी जो आपका ट्रेनिंग हुआ 4 दिन का, ठीक है, आपका कुछ काम होगा अर्जेंट आपकी फील्ड में, वो काम आपका थोड़ा सा रुक गया होगा, लेकिन आप जब वापस जाएंगे रिफ्रेश होके तो आप और अच्छा काम करेंगे। और ट्रेनिंग में जाना भी जरूरी है। जैसे अभी मैं 4 हफ्ते के लिए मसूरी गया था, हमारा 5 साल बाद एक बार ट्रेनिंग होता है। ये स्ट्रेस से कैसे बचा जाए इसका एक पार्ट भी है कि बीच बीच में आपको छुट्टी लेना चाहिए, बीच में ट्रेनिंग में जाना चाहिए, ताकि आपको जो रूटीन है उसमें से आप थोड़े से बाहर निकलते हो। तो इसलिए मत समझिए कि नहीं हमारा काम का नुकसान हुआ, नहीं, आप जो वापस जाएंगे तो आपका जो एफिशिएंसी है उसमें आपका 20%, 30%, 50% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर है, भले ही अभी हमारे स्टेट में कम है, हम उसका नंबर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें जो मैंडेटरी जितनी हेल्थ सर्विसेज दी गई है उसमें मेंटल हेल्थ को बहुत ही बड़ा रोल उसमें दिया गया है। तो आप जब लोगों को आप जब बात करेंगे तो ये जो 4 दिन में आपने जो सीखा वो आप नोट डाउन करिए, ताकि आपका ध्यान रहे, आपका रिवीजन हो उसका। और आपको स्टेप बाय स्टेप लोगों को बोलना है कि भाई फिजिकल फिटनेस रखें, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी। अभी आजकल सोशल मीडिया में आप देखो कि आप जब ब्राउज करते हो तो आपको 8 या 9 नेगेटिव न्यूज मिलेगा, उसमें बाद 10 पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन इसका एक तरीका है, आप तो किसको फ्रेंड करते हैं या कौन सा ग्रुप को फॉलो करते हैं ये तो आप चॉइस कर सकते हैं। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वाले ग्रुप को फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों को फॉलो करिए। और जो लोग नेगेटिव लिखते हैं बार बार, वो तो आप जानते हैं डेली लिखता है नेगेटिव, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, उसको अनफॉलो कर दीजिए, एकदम डिस्कनेक्ट कर दीजिए उसको। तो नेगेटिविटी आपके जीवन में आनी नहीं चाहिए। तो ऐसे भी तो हम इतने सारी समस्या हमारे सामने है, हम लोग जूझते रहते हैं इसमें। तो फिर ये कोई हमें नेगेटिव चीज बम्बार्ड करेगा डेली, तो हम काम कैसे करेंगे? इसलिए आपको भी खुद को भी मेंटली स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है। और जो कोई भी एज का हो तो उनको योगा, उनको जरूर उनको आप बोलिए कि योगा करिए, क्योंकि योगा में आपका मतलब मन, आपका शरीर दोनों एकदम शांत हो जाता है, और आपका जो जितना भी डिप्रेशन है या एंजाइटी है कम हो जाता है। आप अगर उनको सलाह देंगे तो
3 महीना में, 6 महीना में आप देखिए उनमें बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। और भरपूर नींद लेना। अभी हमारी लाइफ ऐसी है कि हम लोग मतलब नींद आती ही नहीं, क्योंकि ये मोबाइल नींद आने नहीं देता। मतलब आप में से कितने होंगे जो 10 बजे सोते हैं? बताइए, हाथ ऊपर करिए। 10 बजे सोता है, 10 बजे। तो देखिए कितने कम हाथ ऊपर आए, 10-12 हाथ आए। लेकिन मैं तो 10 बजे सो जाता हूं। मुझे इतने सारे ऑफिसर, इतने सारे मंत्री जी वगैरह एमएलए मुझे फोन करते हैं। मैंने बोला सर आप 10 बजे के बाद मत फोन करिए। अगर 10 बजे के बाद कुछ आप मैसेज कर दीजिए, मैं सुबह आपको 5 बजे उठ के रिप्लाई दे दूंगा। कहने का मतलब है कि सुबह हमारे यहाँ तो जल्दी सुबह होती है, तो आप सुबह जल्दी उठिए, योगा जरूर करिए, कुछ फिटनेस करिए। मैं यहाँ टेनिस खेलता हूँ या स्क्वाश खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ सुबह, क्योंकि सुबह आपका टाइम है। नॉर्मली आपको 9 बजे से पहले कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। मीटिंग में मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, तो मैं उस प्रोग्राम में आ नहीं पाया। तो मैंने मेरे डिक्टेटर सेशन में आने के लिए मैंने विनती की, क्योंकि ये जो स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो CHO का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 दिन से आपने जो ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारे साथ जो अभी निमान से जो 9 जन रिसोर्स पर्सन आए हैं, उनके साथ आपने ट्रेनिंग किया, और आपने इसका महत्व आपने देखा होगा कि कैसे जो हेल्थ सेक्टर में अगर हमें अच्छा काम करना है तो हम मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो अभी मैडम ने बताया कि मेंटल हेल्थ को एक निगेटिव एंगल से देखना नहीं चाहिए। अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई समझो किसी का छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, मूड चला जाता है, तो जो साइकेट्रिक कंसल्टेशन है उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और ये कम्युनिटी में हमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा। लोग कभी कभी स्वीकार नहीं करते कि मेरे साथ कैसे हो सकता है, मेरे साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, इतना मेरा तबीयत अच्छा है, मैं कभी बीमार नहीं होता हूँ, और मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। ये जो एक्सेप्ट करने का जो बात है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दूसरा कि अगर हम सेक्रेटरी के पास जाएंगे तो समाज में लोग क्या बोलेंगे, फैमिली में लोग क्या बोलेंगे, ये मन में भय रहता है, चिंता रहती है। तो ये सब चिंता या भय करने का कोई कारण नहीं। जैसे अगर कोई हमें सर्दी जुकाम हो गया, कोई फीवर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो हम लोग ट्रीटमेंट लेते ही हैं। मतलब ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैसे हमें अगर कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू है तो हमने ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई आगे पीछे देखना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमें मेंटल हेल्थ इश्यू है, ये पहचानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप जो डोर टू डोर विजिट करते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो, या कुछ लोग है ना धीरे धीरे ओपन अप होते हैं, एकदम जल्दी से कोई बताता नहीं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण हो सकता है कि कोई उनके बचपन में ऐसा कोई हादसा हुआ हो, कोई समझो किसी ने अपने पेरेंट को कोई एक्सीडेंट में लूज किया हो, कोई अकेला रहता हो, कोई किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, मेंटल शॉक हो सकता है, या कोई अपने एडल्टहुड में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया और उनके एकदम अंदाज के विपरीत ही उनको कोई एक्सपीरियंस आया, तो उससे भी एक सदमा हो सकता है। तो उसके बाद उससे उभरना, तो इसके लिए आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको समाज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे अभी यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे स्टेट में मॉडर्न साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, प्लस AGMC में, TMC में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है। मतलब अच्छे से अच्छे प्रोफेसर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमारे पास है।
सिर्फ आपको उनके पास रेफर करना है। हमारा छोटा स्टेट है, तो जो भी गांव से आप लोग ऐसी केस आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो अभी तो हमारे स्टेट में इतने अच्छे रोड, रेलवे सब कुछ है, उनको यहाँ अगरतला आने के लिए भी कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होता। यहाँ से आप ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर तो आपके पास टेली मानस टेली कंसल्टेशन है ही, आप वो ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ओलंपिक्स में मनु बाकेर, एक हमारे शूटर है, उसने 2 मेडल जीते। तो उसने इंटरव्यू में क्या बताया कि टोक्यो ओलंपिक्स में 3 साल पहले 2021 में जब वो पार्टिसिपेट कर रही थी, तो सारे देश को अपेक्षा थी कि वो मेडल लेके आएगी, लेकिन क्या हुआ, लास्ट राउंड में उसका जो पिस्टल था वो फंक्शन नहीं किया। देखो 4 साल से मेहनत कर रहा है, सब कुछ पक्का है, तो सबको उसका इक्विपमेंट 1000 बार चेक किया होगा, सब कुछ पूरी दुनिया देख रही है और पिस्टल चलता नहीं है, तो उसको मेंटल शॉक लग गया। और उसने बताया कि उसके बाद वो स्पिरिचुअल हो गई, मतलब जरूर उसने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया होगा, उसने एडवाइस दिया होगा। तो उसने बोला कि मैंने गीता का पठन किया, ये किया, वो किया, सब उसने बताया, परसों मेडल जीतने के बाद बताया। और आज देखो, मतलब 2 मेडल उसने जीते और आज उसका तीसरा मेडल का भी मैच है। मतलब इसमें ओलंपिक विनर, मेडल विनर के साथ भी ऐसा मेंटल कंडीशन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग, क्रिकेट हमारे देश में फेमस है, तो क्रिकेट में देखिए एक जमाना था कि ऑस्ट्रेलिया का टीम इंडिया के टीम को इतना स्लेजिंग करता था। स्लेजिंग मतलब वो फील्ड पे ही कुछ बोलना, बॉलर बैट्समैन को बोलेगा, बैट्समैन फील्डर को बोलेगा, कि बहुत, मतलब हमारे इतने टैलेंटेड थे प्लेयर, लेकिन वो उनके सामने एकदम परफॉर्म नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेंटल प्रेशर में रखते थे। कल मैच है तो आज कुछ बोल देगा उनका कोई फील्डर या प्लेयर, और हमारी टीम आती थी प्रेशर में। तब से इंडिया की टीम में सब समय एक साइकेट्रिस्ट होता है, वो मेंटल कैसा मेकअप होना चाहिए प्लेयर का, वो उनको सिखाता है। क्या जरूरत है, तो क्रिकेट तो बस थोड़ा फिटनेस आ गया और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपका मेंटल लिंकेज है, तो बगैर उसके ये नहीं हो सकते। आपको सब प्रोग्राम के अंतर्गत स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग जो गोल्डमैन सैक्स निवास मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल हेल्थ मिशन त्रिपुरा, दोनों के जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के वेलिडिक्टरी सेशन में आज उपस्थित डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति मैडम, डायरेक्टर निमांस बेंगलोर, प्रोफेसर विलेज हम लोग कर रहे हैं, वैसे हम लोग ड्रग मुक्त विलेज भी करेंगे, तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 4 दिन का ट्रेनिंग हुआ, ये हमें हमारे स्टेट में ना केवल मेंटल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ से लिंक बहुत सारे इश्यूज है, बाकी ओवरऑल हेल्थ आपका तभी होगा जब मेंटल हेल्थ हो। तो इसलिए मैं फिर से निमांस और एनएचएम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबको भी करीब 100% आपने अटेंडेंस देके ये 4 दिन की ट्रेनिंग किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग के जरिए आप फील्ड में और अच्छा काम करेंगे और हमारे लोगों का जो मेंटल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य है वो उन्नत करने के लिए काम करेंगे। आप सब विलेज हम लोग कर रहे हैं, वैसे हम लोग ड्रग मुक्त विलेज भी करेंगे, तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 4 दिन का ट्रेनिंग हुआ, ये हमें हमारे स्टेट में ना केवल मेंटल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ से लिंक बहुत सारे इश्यूज है, बाकी ओवरऑल हेल्थ आपका तभी होगा जब मेंटल हेल्थ हो। तो इसलिए मैं फिर से निमांस और एनएचएम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबको भी करीब 100% आपने अटेंडेंस देके ये 4 दिन की ट्रेनिंग किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग के जरिए आप फील्ड में और अच्छा काम करेंगे और हमारे लोगों का जो मेंटल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य है वो उन्नत करने के लिए काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत